Students, hope you are doing well. In this video, we will start new chapter coal and petroleum. In this chapter, we will learn four main topics. First, natural resource including inexhaustible and exhaustible natural resource. Second, fossil fuels including coal, coke, coal tar, coal gas. Third, petroleum including refining of petroleum. And fourth, natural gas. So let us start from the first topic, natural resource. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कह रहा है कि हम लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं. उसमें से कुछ हमें नेचर से मिलता है और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है. Now activity 5.1. Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. कह रहा है कि हम लोग जो डेली लाइफ में वेरियस मटेरियल्स का यूज करते हैं उसका एक लिस्ट तैयार करो और उसे नेचुरल और मैन मेड में क्लासिफाई करो. तो हमारा लिस्ट तैयार है नेचुरल का और मैन मेड का. नेचुरल में आता है एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनरेज etc. मैन मेड में आता है चेयर्स, बेंचेस, व्हाइट बोर्ड्स, टेबल्स, रेयन etc. Since all these are obtained from nature, so they are called natural resources. चूंकि ये सब नेचर से हमें मिलता है इसलिए इसको natural resources कहा जाता है. Now natural resources can be broadly classified into two kinds. अब natural resources को broadly two types में divide किया गया. First one is inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are सनलाइट, एयर. कह रहा है कि ये रिसोर्सेज नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है और यह ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं होता है. इसका एग्जाम्पल है सनलाइट और एयर. नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas etc. कह रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और यह ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो सकता है और इसका एग्जांपल्स ये सब है. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स को लर्न करने के लिए आप इसे एग्जॉस्ट फैन से रिलेट कर सकते हो. एग्जॉस्ट फैन का काम होता है किचन के अंदर में जितना भी पॉल्यूशन है उसे खत्म करना. यानी एग्जॉस्ट वर्ड आया खत्म होने से, इसीलिए एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो सकते हैं. Now, in this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms or fossils, so these are all known as fossil fuels. कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये सब चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फॉसिल्स के डेड रिमेन्स से बना था इसीलिए इन सब को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. Now next topic is coal. It is as hard as a stone and is black in color. कह रहा है कि यह स्टोन की तरह हार्ड होता है और ये ब्लैक कलर का होता है. ओके, ये कोल का फिगर है. ओके, coal is one of the fuels used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in the thermal power plants to produce electricity. कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. कह रहा है कि कोल का यूज खाना बनाने में एक फ्यूल की तरह किया जाता है और बहुत पहले इसे रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता था जिससे इंजन चलता था और इसका यूज थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है. साथ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. नाउ स्टोरी ऑफ कोल. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. कह रहे कि 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट था, लेकिन किसी नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग की वजह से वो सारा फॉरेस्ट खत्म हो गया और उसके ऊपर सॉइल चला गया. धीरे धीरे उसके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन ज्यादा और ज्यादा होने लगा जिसकी वजह से सारे फॉरेस्ट का जो डेड मटेरियल्स था वो कंप्रेस्ड हो गया और कंप्रेस्ड होने की वजह से उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से सारे डेड प्लांट्स
कोल में कन्वर्ट हो गया। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also known as fossil fuel. कह रहा है चूंकि कोल में मेनली कार्बन होता है, इसीलिए जो स्लो प्रोसेस था कन्वर्जन का डेड वेजिटेशन से कोल बनने वाला प्रोसेस, उसे कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। और चूंकि ये वेजिटेशन के रिमेन्स से बना था, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। ये कोल माइन का फिगर है। ओके, व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कह रहा है कोल को जब गर्म किया जाता है तो ये बर्न होकर के सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कह रहा है कि कोल को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड किया जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। Now next topic is coke. It is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. कोक जो होता है वो टफ होता है, पोरस होता है यानी छेद छेद इसमें होता है, और ब्लैक सब्सटेंस होता है, और यह प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। इसका यूज स्टील के मैन्युफैक्चर में होता है और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोल तार। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये कोल तार जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और थिक लिक्विड होता है, और इसका अनप्लेजेंट स्मेल होता है यानी कि जहरीला स्मेल होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स etc। कह रहा है कि कोल तार के प्रोडक्ट का जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स का यूज करते हैं उसमें, और इंडस्ट्री में जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को बनाया जाता है उस सब के स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, नेफ्थलीन बॉल यूज्ड टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि नेफ्थलीन बॉल जिसका यूज हम लोग कीड़ा भगाने में करते हैं वो भी कोल तार से बनता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. कह रहे हैं कि आजकल कोल तार के जगह पर बिटुमिन जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका यूज किया जाता है रोड के मेटलिंग में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कह रहा है कि कोल से जब कोक बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उस समय कोल गैस का प्रोडक्शन होता है। इट इज यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plants। कह रहे हैं कि इसका यूज फ्यूल की तरह किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास होता है। अब कुछ लाइंस अभी इम्पोर्टेंट छूट गए, उसको बताते हैं। दिस वन, coal gas was used for street lighting. Nowadays it is used as a source of heat rather than light। कह रहा है कि कोल गैस का यूज पहले स्ट्रीट लाइटिंग में होता था, लेकिन आजकल क्या है, इसका यूज स्ट्रीट लाइटिंग में नहीं होकर के हीट के सोर्स में यूज किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन किया जाता है जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है। The word petroleum is derived from petra means rock and oleum means oil as it is mined from between the rocks under earth। कह रहा है कि पेट्रोलियम दो वर्ड के कंप्राइजिंग से बना है। पहला वर्ड है पेट्रा जिसका मीनिंग है रॉक, और दूसरा है ओलियम जिसका मीनिंग है ऑयल, और यह रॉक के बीच से निकाला जाता है। ओके, अब इसे डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए डायग्राम में, ये रिजर्वायर रॉक है और यह इम्परवियस रॉक है। इन दोनों के बीच से ही ऑयल को निकाला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स etc। कह रहे हैं कि पेट्रोलियम जो है डार्क ऑयल लिक्विड है और इसका अनप्लेजेंट स्मेल होता है, और यह बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर है जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax etc। The process of separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining। कह रहा है कि पेट्रोलियम जिसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसको सेपरेट करने के मेथड को रिफाइनिंग कहा जाता है। It is carried out in the petroleum refining, और यह
पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। टेबल के इस कॉलम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम का और इसमें यूजेस दिया हुआ है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा, ओके, खास करके 5th, 6th एंड 7th को। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। चूंकि पेट्रोलियम का बहुत ही ज्यादा कमर्शियली यूज किया जाता है इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और इससे क्वेश्चन आता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। Natural gas is very important fossil fuels because it is easy to transport through pipes. Natural gas जो होता है वो बहुत ही important fossil fuels है क्योंकि इसका आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप के थ्रू। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas और CNG. Natural gas को बहुत ज्यादा प्रेशर देकर के स्टोर किया जाता है एज ए compressed natural gas जिसका शॉर्ट फॉर्म CNG होता है। CNG is used for power generation. CNG का यूज पावर जनरेशन में किया जाता है। It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. आजकल इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है और यह एक क्लीनर फ्यूल है। इस पैराग्राफ में कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, ओके। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, और इसको फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में काफी साल लग जाता है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 years, और दूसरी तरफ जितना फॉसिल फ्यूल्स है वो कुछ ही साल में खत्म हो जाएगा। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. इसके अतिरिक्त जो इसका बर्निंग किया जाता है इससे एयर पॉल्यूशन होता है। Their use is also linked to global warming, और इसका लिंक ग्लोबल वार्मिंग से भी है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary, और इसीलिए इसका यूज तभी करना चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो। This will result in better environment, और इसका रिजल्ट बेटर एनवायरमेंट होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर एबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और दूसरा ये काफी दिनों तक चलेगा क्योंकि इसका कम यूज किया जाएगा। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol or diesel while driving. Their tips are, कह रहा है कि ये जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म PCRA होता है, वो एडवाइस किया है पीपल को कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल को सेव किया जाए ड्राइविंग के समय, और उसके कुछ टिप्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है, ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड से ड्राइव करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। Switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. ट्रैफिक लाइट और जहां आप किसी का वेट कर रहे हैं वहां अपने इंजन के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। Ensure correct टायर प्रेशर, टायर के प्रेशर को सही रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट, ensure regular maintenance of the vehicles, और व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस कराना चाहिए। इसके साथ ही ये 3 एब्रिविएशन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आ जाता है। फर्स्ट है PCRA, दूसरा है CNG एंड तीसरा है LPG। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।